Hello, each and everyone. So, today we are going to start with the biotechnology and principles and processes chapter. And as you know, the blueprint of life means they are going to talk about the DNA. Okay, so now we are going to start with the first part, that is, what is biotechnology according to the NCRT book, which is going to come in your NEET examination. So at first, in your NCRT book, two main phases of biotechnology is described. The first one is the traditional phase where the whole organism or the live organism was used. For example, as you have studied that to prepare curd, the lab bacteria or the lactobacillus bacteria has been used, and this organism can actually turn the lactose sugar present in the curd. So in this way, the lactobacillus bacteria or the lab bacteria helps in making the curd. Now comes to the bread and wine preparation. So there is a yeast which is named as Saccharomyces cerevisiae. So this Saccharomyces cerevisiae yeast actually prepares the bread and the wine. And ultimately, you have studied this in anaerobic respiration. Now coming to the modern biotechnology, and which is basically based on this molecular biotechnology. Why? Because we are going to use the gene or the part, the segment of the DNA, not the whole organism. So we can make a change in this part of the DNA or part of the gene, and then ultimately we can prepare a whole new organism which is known as genetically modified organisms. And in this way we can prepare the IVF, that is in vitro fertilization test tube babies. Also we can synthesize or correct the genes, and also we can prepare various types of vaccines. Now coming to the next part, that is EFB. EFB is European Federation Board and European Federation of Biotechnology, Board of Biotechnology, which has told that not only we will talk about the natural sciences which was already known to us in the ancient time, but also we can include any organism, or we can include its cells, its parts, or any molecular analog. For example, we can work with the DNA of that particular organism, we can work with the RNA of that particular organism, and ultimately we can finally produced some product. For example, we if we are producing the GMO, so GMO, or genetically modified organism, is just the product of that biotechnological sciences. Okay, now let's come to the next part. So there are two core principles of modern biotechnology. One is genetic engineering, another is bioprocess engineering. So when we come to the genetic engineering part, genetic engineering basically works with the DNA or RNA or the gene. As I told you, that we will take a segment or the part of the gene or the part of the DNA and work with it. Okay, so once the genetic makeup or the genotype of a particular organism is changed, or the genetic makeup of a particular organism is changed, we know that it will in turn affect the phenotypic makeup of that particular organism. That means the physical characteristics of that particular organism. Okay, and in this way, if I change the gene, and if I change the normal gene into my recombinant DNA, my desired gene is already inserted into that organism. So the characteristics which I want to be, multiplied in that particular organism, or persuade in that particular organism, that will be definitely about that particular rDNA which is inserted. Okay, so now this rDNA will go through gene cloning process, then there will be gene transfer process. Okay, so this is all about genetic engineering. Now while doing the genetic engineering, another process comes into play, that is bioprocess engineering. Why? Because whenever you are maintaining an environment which should be sterile, at that point of time, other microorganism, other bacterias, or other undesired particles would not grow in that particular machine, and that is being make sure with the help of the bioprocess engineering. मतलब bioprocess engineering एक ऐसा चीज़ है जो अल्टीमेटली एक स्टेराइल एम्बियंस क्रिएट कर रहा है, एंड ये एक्चुअली प्योरिटी ऑफ द होल बायोटेक्निकल प्रोसेस को मेंटेन करता है. ठीक है, तो इसके वजह से we are able to prepare different type of antibiotics, that is drugs or medicines, different type of vaccines, that is
दोज पार्टिकल्स और वीकेंड वायरसेस और वीकेंड माइक्रोब्स, इसी को वैक्सीन बोलते हैं, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में उसको मारने के लिए. एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर एंजाइम्स. ओके, सो नाउ डीएनए को क्यों यूज किया जाता है? दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स दैट व्हाई आर वी यूजिंग डीएनए? बिकॉज डीएनए इज यूजुअली मोर स्टेबल देन आरएनए. दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग डीएनए in case of RNA. Now we come to the next part. Why genetic engineering is used? Why, if we compare between asexual reproduction, sexual reproduction, traditional hybridization and genetic engineering, कि हम लोग genetic engineering को क्यों यूज़ कर रहे हैं? बाकी 3 जो प्रोसेस हमारे पास पहले से था ट्रेडिशनल प्रोसेसेस, उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हर एक प्रोसेस का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होती है ये हमेशा इमॉर्टल रह जाती है. मतलब इसका जो जीन है ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती. मतलब मदर टू डॉटर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रिजर्व्ड. ठीक है, बट जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या है? कोई वेरिएशन नहीं है. मतलब वेरिएशन का मतलब है देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मेकअप. ठीक है, नो चेंज इन जेनेटिक मेकअप. जैसा जेनेटिक मेकअप मदर का था, सिमिलरली जेनेटिक मेकअप आपके डॉटर सेल्स के हैं. ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी बात है कि इट प्रोवाइड्स वेरिएशन. बहुत अच्छी बात है भाई, हमको जो वहाँ नहीं मिल रहा था वो यहाँ पे मिल रहा है. बट यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात भी है. कौन सी दिक्कत वाली? कि अभी अगर ये वेरिएशंस जो है ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, ये बुरे के लिए भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि इसका जेनेटिक मेकअप जब चेंज हो गया है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, मतलब चीजें फ्रूटफुल बना रहे हैं. कोई न्यू जीन को लाया, कोई कोई न्यू जीन को लाया, ठीक है, जिसमें से बहुत फ्रूटफुल चीज़ें बन रही है. कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चीज़ों को लाया जो कि बहुत फ्रूटफुल है. ठीक है, बट साथ ही में अगर कोई डिजीज़ को भी ये मल्टीप्लाई कर रहा है, डिजीज़ भी इससे रैपिडली बढ़ रहा है, तो फिर वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. राइट, तो इसमें डिज़ायर्ड के साथ साथ अनडिज़ायर्ड दोनों साथ में आ जा रहे हैं. ओके, अच्छा, सिमिलरली गोज टू दी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड. हाइब्रिडाइजेशन मतलब ही आप पता कर लो कि ये एक आर्टिफिशियल मेथड है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस मेथड? द डिजायर्ड ट्रेट्स विच वी नो दैट कैन बी देयर. तो हम लोग 2 डिफरेंट प्रोजेनीज या 2 डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन कर देते हैं. तो कंबाइन करने के साथ साथ हमें चाहिए था सिर्फ डिजायरेबल ट्रेट्स, बट उसमें अनडिजायरेबल जीन्स का भी मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग साइड ऑफ द डिजायरेबल ट्रेट्स हो जाते हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक मात्र सोल्यूशन है. क्यों? क्योंकि आपको इतना सारा चीज देखना ही नहीं पड़ेगा. यू हैव टू ओनली आइसोलेट दैट पर्टिकुलर जीन जिसमें आपको कोई न्यू चीज परफॉर्म करना है, एंड उस पर्टिकुलर जीन को आप अपना जो न्यू जीन आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हो उस डीएनए में, तो वो न्यू जीन को आप इंसर्ट करके उस डीएनए को आप बना सकते हो आर डीएनए. ठीक है, आपके डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करके पुराने डीएनए को आप आर डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब रेकम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सो आपको सिर्फ वही डिजायरेबल कैरेक्टर्स ही मिलेंगे, वही डिजायरेबल जीन्स आप इंसर्ट करोगे और वही डिजायरेबल फिनोटाइप आपको मिलेगा. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी. एंड अल्टीमेटली अनडिजायरेबल वंस, डिजायरेबल वंस, कोई मिक्सिंग चीज़ें नहीं है. कोई बेनिफिशियल चीज़ जो है वो ही सिर्फ पर्टेन हो रहा है. ऐसा नहीं कि आपके लिए जो बेनिफिशियल नहीं है वो भी आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, बट एक ही डिफिकल्टी है इस प्रोसेस का कि इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफिकल्ट. तो हम पढ़ेंगे कैसे जीन मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं. ओके, सो अब तक आप देख लीजिए आराम से. इतना दूर तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी. तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग. देयर आर 3 मास्टर स्टेप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन. तो सबसे पहले मास्टर स्टेप हम लोग ये इमेज या डायग्राम से देख लेंगे. सबसे पहले हमें डिजायरेबल जीन का जो डीएनए है, मतलब ये मेरा डिजायरेबल जीन है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि यहाँ पे डिजायरेबल जीन क्या है? इंसुलिन वाला जीन. ठीक है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. अब दूसरा बात क्या है? उसको इंट्रोड्यूस कराना है. किसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे? एक बैक्टीरियल सेल में. हमारे पास बाहर में ऐसे इंसुलिन जीन था, उसको हम अंदर डालेंगे. बट क्या किस तरीके से डालेंगे? जब भी इसको डालेंगे, ये तो बैक्टीरिया के लिए फॉरेन मटेरियल है.
ठीक है, तो बैक्टीरिया तो इसको मतलब घुसते ही इसको मार डालेगा, घुसते ही इसको खारिज कर देगा कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटीरियल। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए है, दिस इज द मेन डीएनए और मेन क्रोमोसोम, उसमें भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेन डीएनए को आप निकालेंगे तो बैक्टीरिया ऑलरेडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो हम निकाल सकते हैं दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि व्हीकल या वेक्टर का काम भी करता है। ठीक है, तो कैसे अब पता कर लेते हैं। पहले प्लाज्मिड को निकालेंगे, प्लाज्मिड में वो जीन को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और प्लाज्मिड ऐसा होना चाहिए जो कि रेप्लिकेट कर सके, इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निकाल लिया किसी भी प्लाज्मिड को, कहीं से भी जीन जोड़ दिया, कहीं से भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये सोच रहे हैं हम लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वो चीज निकालना है, इंसुलिन का जीन को इंसर्ट करना है एंड वापस से बैक्टीरिया में वापस देना है। तो जब बैक्टीरिया में वापस देंगे वो तो सोचेगा अरे भाई ये तो मेरा ही प्लाज्मिड था जो बाहर गया था, अभी अंदर आने की कोशिश करे, तो उसके लिए वो गेट ओपन कर देगा एंड उसके लिए इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को वो कभी भी आपका हार्म नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो हमारा खुद का ही प्लाज्मिड है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि अपना जो डीएनए है उसको प्लाज्मिड के द्वारा हमने बैक्टीरिया के सेल में इंसर्ट कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 इज मेंटेन। सो दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो मेंटेन जब करेंगे इस पर्टिकुलर डीएनए को कोई भी एक होस्ट में, तो इसके लिए मेंटेन का मतलब क्या है कि इसमें जीन क्लोनिंग हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा जीन अंदर तो गया बट फैल नहीं पाया, मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऐसा भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्लाज्मिड जो है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये कर सकते हैं, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोजेनी जो है ये बढ़े, हमारा जो ऑफस्प्रिंग्स है ये प्लाज्मिड और इस डीएनए को फैलाए। इज इट क्लियर? और इस डीएनए को फैलाएं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये सब कैसे पॉसिबल हो, कैसे हमने प्लाज्मिड को कट किया, कैसे डीएनए को इंसर्ट किया। ये तो बस बोलने वाली बात है, बट किया कैसे। तो 1972 में एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू आता है, बड़ा सा ब्रेक थ्रू किसके फॉर्म में, रिकम्बिनेंट डीएनए के इन्वेंशन के फॉर्म में। द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए विच वाज फॉर्म्ड बाय हुम, दो साइंटिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए पढ़ना, स्टैनली कोहिन एंड हर्बर्ट बॉयर। ठीक है, तो कोहिन एंड बॉयर ऐसे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए पे काम किया। ठीक है, अच्छा, कोहिन ने किस पे स्टडी किया एंड बॉयर ने किस पे स्टडी किया। बॉयर ने स्पेशली रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम पे स्टडी किया। ठीक है, जो कि डीएनए को कट करने के लिए हेल्प करता है। और कोहिन ने प्लाज्मिड पे स्टडी किया कि भाई एक वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है जो कि अल्टीमेटली डीएनए को लेके जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, साथ ही में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी है। इतने सारे पॉइंट्स है प्लाज्मिड के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग सोर्स पे कि कहीं से तो डीएनए पहले लेना पड़ेगा ना। ये जो हम डिजायर्ड, इसको क्या बोल रहे हैं, हमारा डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन तो मेरे को किसी मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म से उठाना पड़ेगा, जिसको हम किसी और एक मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म में हम डालेंगे। ठीक है, तो कोई मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म जिससे हम इसको उठाएंगे वो है हमारे लिए साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, नॉट साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफॉइड जो है वो कॉज करता है। ठीक है, बट ये है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, सो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड से एक पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन को उठाया एंड इस पर्टिकुलर जीन का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ये नाम है उसका। तो ये उठाया आपके इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। ठीक है, फिर उसका मिलता जुलता बैक्टीरिया खोजा जो कि है ई कोलाई। ठीक है, अब ई कोलाई के डीएनए से क्या उठाना है, प्लाज्मिड को लेना है। तो ये है ई कोलाई का प्लाज्मिड जिसको निकाला। ठीक है, साल्मोनेला के डिजायर्ड जीन को निकाला एंड वही साल्मोनेला का डिजायर्ड जीन को मॉलिक्यूलर ग्लू के मदद से चिपका दिया।
ठीक है, पहले तो मॉलिक्यूलर सीजर के मदद से कट किया, फिर मॉलिक्यूलर ग्लू के मदद से चिपका दिया। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, आरई मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको किसने इन्वेंट किया था आपको पता ही है, मैंने पहले ही बोल दिया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हर्बर्ट बॉयर ने किया था। ठीक है, और कोहिन ने प्लाज्मिड पे स्टडी किया था। तो कोहिन क्या किया? प्लाज्मिड को निकाला। ठीक है, एंड साथ ही में उन्होंने प्लाज्मिड को मतलब प्लाज्मिड को इस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से जुड़ा। ठीक है, और जुड़ा जुड़ा भी तो कौन से चीज के हेल्प से? मॉलिक्यूलर ग्लू के हेल्प से, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज, मतलब लाइगेशन का काम करता है। तो ये है डीएनए लाइगेज। ये जैसे है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सीजर का नाम क्या है भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, वैसे ही आपका डीएनए का नाम क्या है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, ग्लू का नाम क्या है? डीएनए लाइगेज। अच्छा, अब जब जुड़ गया है, अब हमारा न्यू डिजायर्ड प्लाज्मिड जो है, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए जो है, ये बन चुका है। तो हमारा आधा काम तो भाई हो गया कंप्लीट, बट इसको अभी इंसर्ट करना है ई कोलाई में। ठीक है, तो इसको इंसर्ट करने के लिए बैक्टीरिया में बहुत सारे मदद है, जैसे कि हीट शॉक ट्रीटमेंट, मतलब पहले उसको आइस में डालना। ठीक है, फिर उसको हीट शॉक देना, फिर उसको दोबारा से आइस में डालना। तो ऐसे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के वजह से बैक्टीरिया नहीं समझ पाता है, एंड अल्टीमेटली बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को वापस से अंदर घर में घुसा लेता है। ठीक है, और जैसे ये प्लाज्मिड अंदर गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट किया, तुरंत से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। और देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी आगे के प्रोजेनीज बने, ये सब हमारा वाला प्लाज्मिड के डीएनए से बना है। देखो अच्छे से, लेट मी जूम इट हियर। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर के जो भी हमारे पार्टिकल्स है, साथ में येलो कलर के भी है। तो अभी तक क्या था? अभी तक नॉर्मल ग्रीन कलर के प्लाज्मिड थे। अभी हमारा ये येलो वाला रिकम्बिनेंट जीन जो गया, अभी सारे प्लाज्मिड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो वाले बनने लग गए। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्रूशियल रूल। क्रूशियल रूल क्या है? कि एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई करना है जब न्यू ऑर्गेनिज्म में, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम का पार्ट नहीं होगा। तो ऐसे अगर जीन को इंसर्ट कर देते, तो मैंने क्या बोला कि इकोलाई उसको रिजेक्ट कर देता। वो बोलता अरे भाई तुम कौन से मेहमान हो भाई, तुमको क्यों रखे, तुम लोग तो फॉरेन मटेरियल हो, राइट? एंड दैट्स द रीजन इकोलाई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, बट अभी वो जब अपना प्लाज्मिड ही वापस आ रहा है घूम फिर के, तो इकोलाई को लगा कि ये तो खुद का प्लाज्मिड है भाई, इसको वापस से ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। इसीलिए ये चीज या जीन क्लोनिंग का प्रोसेस हो पाया या चल पाया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद उस प्लाज्मिड में ORI मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर से जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं रहेगा तो रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। क्विकली हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले EFB क्या है? EFB तो वही बोर्ड है जिन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडिशनल को नहीं लेके चलेंगे, या सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यू जो बायोटेक प्रोसीड्योर है उसको नहीं लेके चलेंगे, हम नेचुरल साइंसेस को भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही में जो न्यू DNA हमारे पास बना है, या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब DNA RNA जो है, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये EFB का साफ साफ कहना था कि दोनों को लेके साथ में चलना है, नेचुरल साइंस को भी नहीं छोड़ना है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को जो न्यू हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीड्योर में आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, उसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है, ये दोनों साथ में मिलके काम होगा। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ DNA का कट कर देंगे, DNA का जुगाड़ कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर प्योरिटी ऑफ चीज़ें मेंटेन करने के लिए, प्योरिटी साफ सुथरा चीज़ होना चाहिए, अनडिजायरेबल माइक्रोब्स ना ग्रो कर जाए, ये सब चेक ऑन करने के लिए बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग यहाँ पे है। मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टेराइल फैक्ट्री। अच्छा, इसके बाद आता है GE। ठीक है, आइसोलेट्स ओनली डिजायरेबल जीन्स। ओके, अनलाइक द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्यों हम लोग चूज करें, क्यों हम लोग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को नहीं चूज करेंगे? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये अल्टीमेटली ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से
एक लेवल, एक स्टेप ऊपर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिजायरेबल जीन्स का यूज कर रहे हैं मात्र। इसमें ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के जैसा या ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के जैसा डिजायरेबल प्लस अनडिजायरेबल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू कोहेन एंड बॉयर। तो कोहेन एंड बॉयर 1972 में फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट किया था यूजिंग साल्मोनेला एंड इकोलाई। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा। नेक्स्ट इज एलियन डीएनए को चाहिए, मतलब एलियन डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ऐसा साइट चाहिए जिसके द्वारा ये रेप्लिकेशन हो सके, या रेप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए स्टार्ट हो सके। ठीक है, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो सके, डीएनए का न्यू चेन बन सके। ठीक है, तभी ना होगा एक प्लाज्मिड से दूसरा प्लाज्मिड, राइट। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिड कोहेन एंड बॉयर आइसोलेट? तो जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या और या कौन सा जीन आइसोलेट किया था, मैंने पहले ही बता दिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आइसोलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रेफर्ड ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन? बहुत ईजी है, अभी अभी पढ़ा, 10 बार पढ़ रहे हो, सेम चीज है कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चीज एक साथ आ रहे थे ट्रेडिशनल में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ हम जो चाहते हैं हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डिजायर्ड है, सिर्फ वही आ रहे हैं, अनडिजायरेबल एकदम से नहीं आ रहे, एलिमिनेट हो जा रहे पहले से ही। ठीक है। दूसरा, स्टेरिलिटी एम्बियंस कौन मेंटेन करता है? आपको पता ही है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग स्टेरिलिटी मेंटेन करता है। ये जब बेसिक सवाल आप आंसर कर पा रहे हो अपने से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हो। अगर आप कर पा रहे हो दैट मीन्स आप समझ चुके हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज टूल्स फॉर रेकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब क्या क्या हमारे पास टूल्स प्रेजेंट है, क्या ऐसा चीज है जिससे हम कट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या न्यूक्लिएजेस। वो एंजाइम होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को क्लीवेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब बाहर से डीएनए का कट कर रहे हैं, एंडो मतलब एक स्पेसिफिक साइट और मीड से डीएनए को कट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइट पे कट कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से साइट? रिकॉग्निशन या पैलिंड्रोमिक साइट। व्हाई रिकॉग्निशन? बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस साइट को पहचानता है, पहले जाता है, फिर पहचानता है, फिर जान पहचान बढ़ाता है, फिर कट करता है। ठीक है, और पैलिंड्रोमिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आगे जाके इकोलाई में हम ऐसा सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं जैसे GAATTC, उसका रिपीटेशन, मतलब जब ये, तो आपको पता ही है कि डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में जैसा है, ठीक उसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो ठीक वैसा ही है, मतलब उल्टा अगर हम करें, उल्टे सीक्वेंस में कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमको पता है कि गुआनाइन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, एडिनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन, फिर एडिनाइन थाइमीन के साथ पेयर करेगा, थाइमीन अगेन एडिनाइन के साथ, फिर अगेन एडिनाइन के साथ, फिर अगेन आपके साइटोसिन गुआनाइन के साथ। तो ये हो गया आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम का सीक्वेंस। तो आप देख ही सकते हो कि पैलिंड्रोम के जैसा फॉर्म कर रहा है, मतलब इट इज रेड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, सेम एज इट इज। ठीक है, सिक्वेंशियली। तो इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को देख के वो कट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं द बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो कि 1963 में डिस्कवर हुआ था। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, देखो, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक चीज हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज बैक्टीरियोफेज। आपने सुना भी होगा कि गंगा वाटर की प्योरिटी भी मेंटेन होती थी, क्योंकि बैक्टीरियोफेज काफी ज्यादा मात्रा में गंगा वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो कि क्या करते थे, बैक्टीरियल डीएनए को ही कट कर देते थे, जिसके वजह से अल्टीमेटली बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि इसी पर्टिकुलर वायरल डीएनए को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अच्छा, ये बैक्टीरियोफेज ऑर्गेनिज्म अब क्या किया, इन्होंने इन 1963 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वेर आइसोलेटेड, इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि ई कोलाई ने बोला कि आओ बच्चों, मेरे को तुमने इतना परेशान किया, अब मैं तुमको दिखाता हूँ 2 डिफेंस मैकेनिज्म मैंने भी बिल्ड कर लिया है, तुम चाह कर भी मेरे डीएनए को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ई कोलाई ने भी एकदम ओपन चैलेंज दे दिया। ठीक है,
अब ओपन चैलेंज से क्या हुआ, दो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसेस, दो पर्टिकुलर शील्ड उसने भी बनाया। एक तो है भाई मिथाइलेज, ठीक है, मिथाइलेज मतलब एडिंग CH4 ग्रुप टू द डीएनए, ठीक है। देखो अपने बैक्टीरिया अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में सब ऐसे CH3 या CH4 जो भी बोलो ऐसे करके उन्होंने ऐड कर दिया, मिथाइल ग्रुप पूरा ऐड कर दिया। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज आया इसको अटैक करने के लिए, इसने सोचा कि भाई ये तो पूरा मतलब ये बैक्टीरिया का तो वो डीएनए है ही नहीं जिसको मैं कट करता था पहले, राइट। उसको तो हम कर ही नहीं सकते अभी, क्योंकि ये तो पूरा इसको पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि इसने पूरा मिथाइल से शील्ड बना लिया था बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर, जिसके वजह से ये बैक्टीरिया को कट नहीं कर पाया, ठीक है। और दूसरा भाई क्या है, दूसरा है आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरी को भी उसने बनाया कि भाई देखो मेरे पास है आरी, ठीक है। आरी मतलब देखो वो जैसे बोलते हैं धुरंधर में आरी आरी आरी, तो वैसे आरी से उसने पूरा कट कर दिया, ठीक है। किसको कट किया, बैक्टीरियल, किसको कट किया, वायरल जीन को। कि जैसे ही उसने अपना जीन डालने की कोशिश किया, इट रिकॉग्नाइजेस द वायरल डीएनए, कट्स इट इनटू पीसेस, ऐसे छोटे 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 टुकड़े कर दिए कि तुम दुश्मन अभी आओ, मैं तुम्हारे लिए डिफेंस सिस्टम खड़ा करके रखा हूं, अपने डीएनए को पूरा से बचाऊंगा और तुम्हारे डीएनए को खत्म कर दूंगा कि तुम आ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो कितना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस सिस्टम ई कोलाई बैक्टीरिया ने, दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया ने वायरल डीएनए या बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट निकाला, ठीक है। चलो अब यही होता है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, दैट इज इन 1970, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड एंड इसमें 6 बेस पेयर सीक्वेंस था, इसीलिए इसको बोलते थे हेक्सा कटर, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स स्टडी अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कि कैसे काम करते हैं। तो अभी एनसीईआरटी का ही लाइन है, आप ले लो कि ओवर 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर आइसोलेटेड ओवर 230 प्लस स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड इसके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही ये कट करते हैं, एंड जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्पेसिफिक पॉइंट है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बना है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना है, हमको पता है, ठीक है। और बीच में जो चीजें हैं ये क्या है, ये उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, दैट इज एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन। डीएनए है तो थाइमिन है, आरएनए होता तो यूरासिल होता, ठीक है। अब पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ये सीक्वेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, GAATTC उल्टा वही सेम सीक्वेंस है, राइट टू लेफ्ट। अब आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कि उसका नेमिंग कैसे होता है, जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा कि हाइंड 2, ठीक है, वैसे सिमिलरली इकोराई 1, ठीक है। तो ई फॉर एस्चेरिचिया, ठीक है, क्योंकि इसको लिया गया है कौन से बैक्टीरिया से, इकोलाई बैक्टीरिया से, ठीक है। वो फॉर द स्पीशीज नेम, आर फॉर RY13, ठीक है, ये स्ट्रेन का नेम है RY13, और 1 इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन कि सबसे पहले नंबर 1 पे इसको आइसोलेट किया, तो हाइंड 2 में ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब सेकंड में किया, हाइंड 1 पहले किया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज स्टिकी एंड्स एंड द मॉलिक्यूलर ग्लू। तो मैंने क्या बोला कि कट करने के लिए तो यूज हो जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और एक स्पेसिफिक इकोराई कहाँ पे कट करता है, GNA के बीच में कट करता है, जहां पे उसको GNA मिलेगा, तो वो 5 प्राइम से जब 3 प्राइम मूव कर रहा होगा तब भी GNA के बीच में कट करेगा, ठीक है। तो अगर सोचो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो हमारे पास क्या, ये वाला चीज चला गया, हमारे पास ऊपर के स्ट्रैंड में सिर्फ G बच गया, ठीक है। और अगर नीचे कट किया तो नीचे में ऐसे कट किया कि हमारा ये G चला गया और ये वाला स्ट्रैंड हमारा बच गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कट वो करेगा, ओके। तो ये क्या करता है, जैसे कट करता है तो ओवर हैंगिंग स्ट्रेसेस बना देता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ATT वाला सीक्वेंस आ गया, तो वो अभी ज्वाइन करेगा किसी दूसरे डीएनए के साथ, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बनाते हैं इसीलिए स्ट्रिकी एंड्स, एंड ये बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिस बॉन्ड के थ्रू ये स्टिकी एंड्स चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही में तो डीएनए लाइगेज एकदम मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करके अल्टीमेटली इसको सील कर देते हैं, ठीक है। परमानेंटली जॉइंस द फॉरेन डीएनए विद द प्लाज्मिड। अच्छा क्विक रिकैप कर लेते हैं
चलिए फास्ट। तो सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एंड्स को कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं, बीच में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, जिस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया कैसे बचते हैं वायरस से, कैसे सील करते हैं, दो चीज से, एक तो उसका मिथाइलेज, मतलब जो मिथाइल है, मिथाइल से वो अपने डीएनए को कवर अप कर लेते हैं, डीएनए को पहचानने ही नहीं देते वायरस को, और जैसे वायरस का जीनोम एंटर करता है संगे संग वो क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करके रेस्ट्रिक्शन एक्स्ट्रा एंजाइम के द्वारा वो कट लगा देते हैं वायरस के डीएनए में, ठीक है, जिससे वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है ना, अल्टीमेटली इफेक्टिव नहीं रहता। तो इकोराई जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि जी एंड ए मतलब गुआनाइन एंड एडेनाइन के बीच में कट कराता है, क्रिएटिंग स्टिकी एंड्स और ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एंडोन्यूक्लियस का या एंडो एंजाइम का नाम क्या है, हाइन 2, ठीक है। दूसरा क्या है, DNA ligase acts as glue to join complementary sticky ends. Yes, DNA ligase जो है ये glue के तरह काम करके complementary sticky ends को finally join करके seal कर देता है, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में। व्हाट डज आर मीन, आर अभी पढ़ा था कि RY13 मतलब स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, बैक्टीरियल स्ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट है व्हाई इट इज क्रूशियल टू कट बोथ द वेक्टर एंड द सोर्स DNA विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्यों दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, क्योंकि सेम सीक्वेंस वो प्रोड्यूस करेगा। दूसरा मतलब सपोज मैंने इकोलाई के जो डीएनए है या प्लाज्मिड है उसको इकोराई 1 से कट किया, ठीक है, और मेरा साल्मोनेला वाला जो था उसको मैंने सपोज कट किया हाइंड 2 से, ठीक है। तो दोनों तो अलग अलग सीक्वेंस पुट करेंगे, पर बाद में जुड़ने के लिए काम नहीं आएगा, सेम टाइप ऑफ ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस या सेम स्टिकी एंड्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा बाद में इसको जुड़ना, ठीक है। दैट्स द रीजन सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों का कट करवाओ। सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। वेक्टर कौन सी चीज है, वेक्टर इज वर्किंग जस्ट लाइक अ व्हीकल, मतलब जो इजी प्रोसेस को कराने में हेल्प करे, जो इस हमारे डिजायर्ड जीन या डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करे, यही पर्टिकुलर रोल है वेक्टर का। कि हमने तो RDNA बना दिया, हमने तो रेकम्बिनेंट DNA बना दिया है, अब इस पर्टिकुलर रेकम्बिनेंट DNA को कैसे कैरी करके अंदर लेके जाना है, तो वो काम है वेक्टर का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं द स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, जिसको बोलते हैं ORI। तो एक क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहला चीज एसेंशियल फीचर में जो होना चाहिए वो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वही एक साइट है, वही एक पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन ऑफ जीन्स स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा चीज है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब एक ऐसा वेक्टर बहुत अच्छा वेक्टर होगा जिसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है, मतलब मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर 100 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तो बहुत ही एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि दूसरा है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए। व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए हमको कैसे पता है कि कौन सा बैक्टीरिया एक्चुअली इस रिकम्बिनेंट डीएनए को लिया है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग एक ऐसे देखो मिक्स्ड बैक्टीरियल पॉपुलेशन बना दिए हैं। इस मिक्स्ड बैक्टीरियल पॉपुलेशन में हमने अभी यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स या एंटीबायोटिक प्लेट में डाला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो इकोलाई जो है ये डू नॉट कैरी एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अगर कोई जीन कैरी नहीं करता तो जीन्स कोडिंग फॉर रेजिस्टेंट दैट इज एम्पीसिलिन, कोलामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, दिस विल बी एक्ट एज अ मार्कर एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट कि ये जो ग्रीन वाले ये जो है ऐसे वाले हैं ये हमारे ट्रांसफॉर्मेंस बैक्टीरिया है जिसमें RDNA चल गया है ऑलरेडी, और जो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्लाज्मिड, उसको हमें पहले से जानना है कि प्लाज्मिड क्या क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि प्लाज्मिड ही अल्टीमेटली हमारे लिए वो व्हीकल या वो वेक्टर है जिसका नाम देखो यहाँ पे दिया हुआ है PBR322, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिग्विज, 322 इज द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, ORI साइट जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ DNA। अच्छा, रेप्लिकेशन जब शुरू होगा तो उसको हेल्प करने के लिए कौन प्रोटीन्स का सहायता करेगा, ROP,
ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कोड्स फॉर रेप्लिकेशन प्रोटीन्स, मतलब आरओपी प्रोटीन्स देगा या प्रोड्यूस करके देगा कि हाँ भाई न्यू डीएनए जब बना रहे हो तो प्रोटीन की जब जरूरत होगा तो आरओपी उसको प्रोटीन्स प्रोवाइड करके देगा। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट आते हैं आपके पास कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास रेजिस्टेंस जीन का साइट है। एक हमारे पास एएमपी रेजिस्टेंस मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, दूसरा हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब आप अगर इस प्लाज्मिड को, इसका रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप एम्पिसिलिन दोगे तो ये ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन दोगे तो भी ये ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ये डेड नहीं होगा वो सिस्टम में, वो इम्प्लिसिटली ना टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये डेड नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो ये ग्रो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन कट साइट्स भी प्रेजेंट है, दैट इज PST1, PVU1। ठीक है, फिर इकोराई 1, CLA1, HIND3, BAMH1, SMA1, PVU2, ये सारे आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस या रेस्ट्रिक्शन साइट्स है या जिसमें जीन को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डीएनए को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब हम ऐसे जीन को इंसर्ट करेंगे, उस साइट को इनएक्टिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर में बीच में अगर मैं कोई जीन घुसा देता हूँ तो फाइनली क्या होता है, ये जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अब काम नहीं करेगा। तो जैसे हम इस बैक्टीरिया को, जिसमें हमने एक फॉरेन डीएनए को जबरदस्ती एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीचों बीच घुसा दिया है, अगर हम इसको एम्पिसिलिन में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के अगेंस्ट पे कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, so the loss of resistance is actually the proof that our gene has successfully inserted. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, the ampicillin resistant gene is broken apart and the new gene, the vector is no longer ampicillin resistance. ठीक है, सो इंटैक्ट एम्पिसिलिन जो रहेगा, बैक्टीरिया विल सर्वाइव इन एम्पिसिलिन। अभी जीन ब्रोक हो चुका है, बैक्टीरिया का डेड हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं रेजिस्टेंस शो कर पाएगा, इवन ग्रो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ग्रो नहीं कर पाया वो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ग्रो कर पाया वो हमारे लिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है। अच्छा, क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर एक सच व्हीकल है, मतलब इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, जो कि बेसिकली प्लाज्मिड्स वेक्टर का काम करते हैं। दूसरा, वेक्टर में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी नंबर होना चाहिए ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके, अपने प्रोजेनी को या अपने डीएनए को बढ़ा सके, और ORI साइट भी होना चाहिए जिसका मतलब है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। तीसरा है सिलेक्टिबल मार्कर, मतलब हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिसको हम अगर डिस्ट्रॉय करें, फिर जब डिस्ट्रॉय करने के बाद जब बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन से हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, कौन से हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ट्रांसफॉर्मेंट्स डाई कर जाएंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स लिव करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एक्चुअली एक्ट्स एज सिलेक्टिबल मार्कर्स। तो इकोराई में सिलेक्टिबल मार्कर कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये दो सिलेक्टिबल मार्कर्स इकोराई में प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जैसे हमने बोला आपको अभी कि जैसे हम किसी रेजिस्टेंट जीन के बीचों बीच अपना डिजायर्ड डीएनए को डाल देंगे तो रेजिस्टेंट जीन क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है इफ यू वांट अ हाई यील्ड चाहने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कॉपी नंबर चाहिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि आपको नेम 2 स्पेसिफिक सिलेक्टिबल मार्कर्स फाउंड इन प्लाज्मिड। तो इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में दो सिलेक्टिबल मार्कर्स जो है ये है AMPR and tetracycline R. If a foreign gene is inserted at BAMH1 site, ठीक है,
ऑफ PBR 322 बैम H1 में डाला है, मतलब बैम H1 किसका पार्ट था, देखो टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस का पार्ट था, तो इसमें कौन सा जीन चला जाएगा, कौन सा जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बैक्टीरिया को अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करने की कोशिश करेंगे, मतलब रेकम्बिनेंट डीएनए को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करके ग्रो नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट। ठीक है, अच्छा चलो अब हम आते हैं ऑलमोस्ट एंड के तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, कट किया, लाइगेट किया, ट्रांसफर किया एंड फाइनली उसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, नेक्स्ट इज क्रूशियल मेमोराइजेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 1963 में क्या इन्वेंट हुआ था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड मिथाइलेज वाज डिस्कवर्ड इन ई कोलाई। 1970 में हाइन टू आइसोलेट हुआ था, दैट इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 6 बेस पेयर सीक्वेंस जिसमें था। अच्छा, नेक्स्ट इज 1972 में फर्स्ट आरडीएनए क्रिएट हुआ था, कोहेन एंड बॉयर ने किया था। कोहेन ने, जैसे मैंने बोला कि साल्मोनेला प्लाज्मिड पे स्टडी किया था, और बॉयर ने आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे स्टडी किया, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला, ई कोलाई में डाला। ठीक है, अच्छा 2015 में क्या हुआ था, UU2 नोबेल प्राइज जीता था, मलेरिया के अगेंस्ट उन्होंने फाइंड किया था, सल्फर ड्रग्स आपको पता ही है, आर्टिमाइसिन। ठीक है, अच्छा चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज कॉमन एफएक्यू एंड कॉमन ट्रैप्स। तो सबसे पहले कॉमन ट्रैप क्या है, कंफ्यूजिंग बिटवीन एक्सो एंड एंडो। तो एक्सो क्या है, एंड्स, ठीक है, एंड एंडो मतलब इनसाइड। एक्सो का मतलब हमेशा याद रखना कि एक्सो का मतलब है भाई एक्सटीरियर, मतलब बाहर से डीएनए को कट करना। एंडो का मतलब स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या मिड से डीएनए को कट करना। दूसरा ट्रैप क्या है, थिंकिंग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन गारंटीज गुड ट्रेड्स। तो हाँ, गुड ट्रेड्स के साथ साथ डिजीज भी आ सकती है, अनडिजायरेबल जीन भी आ सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग पे शिफ्ट करना पड़ा, जो कि आइसोलेट करता है ओनली स्पेसिफिक ट्रेड्स को। अच्छा, नेक्स्ट ट्रैप क्या है कि थिंकिंग एलिन डीएनए कैन रेप्लिकेट एनीवेयर, कि हम डीएनए को डाल देंगे तो डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। नहीं, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए उसको एक प्रॉपर सारा चीज चाहिए, इसीलिए उसको वेक्टर में डाल रहे हैं, ना कि ऐसे ही डीएनए को डाल रहे हैं। तो सारे चीज में सबसे पहले आते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे, रेप्लिकेशन भी नहीं स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी को मॉलिक्यूलर एनालॉग और नेचुरल साइंस के साथ आप इजीली बता पाओगे, EFB बोर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, विच स्पेसिफिक एंजाइम एड्स मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम है मिथाइलेज, याद होगा, हो जाएगा अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट, नेम in the naming of E. coli what does the Roman numeral 1 signify। 1 का मतलब हमें पता है कि ये order of isolation है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एंड्स आर जनरेटेड। एंड्स क्या हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा स्टिकी एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड भी बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल दिया, तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। बात खत्म। तो इजी क्वेश्चन था, आई गेस आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, फाइनल रिवीजन भी हो गया है। एंड फाइनली एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक सिनेरियो दिया गया है, कैसा सिनेरियो कि यू आर अटेम्प्ट टू कट अ ह्यूमन जीन and PBR with E. coli, but the ligase fails to join them. What structural mistake might have occurred regarding the ends? ठीक है, तो ends में क्या हुआ होगा कि हम लोग डिफरेंट एंजाइम से कट कर लिए होंगे एंड फाइनली यहाँ पे रिकम्बिनेंट स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। ठीक है, एंड स्टिकी एंड्स जैसे ही मतलब प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो लाइगेज से ज्वाइन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इंसर्ट अ जीन इन द PST1 साइट, तो PST1 यहाँ पे एम्पिसिलिन की इधर होता है। ठीक है, ये गलत लिखा है, ये यहाँ पे PST1 होता है, तो एम्पिसिलिन में अगर इंसर्ट हो जाएगा तो एम्पिसिलिन का जो जीन है वो कट हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ये जीन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस शो नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आइसोलेट अ न्यू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइजेस 8 बेस पेयर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, विल इट कट द DNA मोर फ्रीक्वेंटली और लेस फ्रीक्वेंटली दैन द हाइंड टू विच रिकॉग्नाइजेस अ 6 बेस पेयर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये लेस फ्रीक्वेंटली होगा क्योंकि 6 बेस पेयर सीक्वेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो जब 8 बेस पेयर रहेगा तो उसको लेस फ्रीक्वेंटली कट करने के लिए मिलेगा क्योंकि इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर प्रिंसिपल, इफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग फेल्स ड्यूरिंग अ मास प्रोडक्शन ऑफ रन ऑफ इंसुलिन, व्हाट इज इमीडिएट रिस्क टू द बैच? यस, तो इमीडिएट रिस्क क्या हो जाएगा कि जैसे ये बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग फेल हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका, ये जो माइक्रोब्स है ये फैल जाएगा एंड अल्टीमेटली ये इंसुलिन जीन के लिए बहुत ही बड़ा रिक्स हो जाएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस हम लोग बना रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक, शेयर एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो कि अभी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मैं आपके लिए एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाती रहूँगी ताकि आप यूट्यूब में फ्री के लेक्चर्स में नीट का प्रिपरेशन कर सकें।